today we are going to begin with the interrogative part of present indefinite tenses. I had already told you the basic structure of a tense is subject followed by verb followed by object, right? And this is for affirmative, positive, negative. In present indefinite has, does not and do not. First form of verb and, right? When we talk about interrogative, it's positive. I had told you already, it can be interrogative, it can be interrogative negative also. In case of interrogative, the helping verb, these are called helping verb. Do, does, did, will, shall, has, have, had, these are all called helping verb. Is, are, am, was, were. These helping verbs simply come in the beginning of the tense. The rest of the tense remains the same. Rest of the parts of the tense do not change their place. Only the helping verb comes in the beginning. Then, because of positive, the order will remain like this: subject, first form and object. Okay. And if we are talking about interrogative, which is negative also, again this helping verb will come in beginning, not will remain at its place. When we talk about written English, the correct English, not does not move with the helping verb. But when we speak, then generally we bring not also in the beginning along with the helping verb. Like we use those short forms, don't and doesn't. Then we simply begin don't in the beginning or doesn't in the beginning together. For writing purpose, interrogative and negative, only do, does will come in beginning. Rest will remain same. Means not will remain before verb. I'll just give you an example. Do you read books? Is a question. Okay. If I have to ask it in the negative form for writing purpose, correct English, I'll say, do you not read books? Fine. But for speaking purpose, I can simply say, don't you read books? Means I have used the contraction in the beginning. So it depends. When you are teaching your students to write correct English, then you have to go by the formula, by the rules. But for spoken English, we generally use contractions together. Okay. So we are going to focus on both these kinds of interrogative and one more type which uses the WH words: what, when, why, who, how, which, where, etc. Right? So when we use these WH words in any of the interrogatives, whether it is present indefinite or any other, then the sense of the question changes a bit and these words come even before the helping verb. Okay. Suppose I say, do you play cricket? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? When do you play cricket? तुम क्रिकेट कब खेलते हो? When has come even before do you play cricket. Till here I hope it is clear. I am going to erase these. Can't write higher, हाथ ऊपर नहीं जाता आजकल. Frozen shoulder. So
क्वेश्चन मार्क वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटरोगेटिव टेंसेस. डू यू प्ले क्रिकेट? अब इसमें से कोई भी WH वर्ड लगाना है. व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, हाउ डू यू प्ले क्रिकेट, विद whom डू यू प्ले क्रिकेट. ओके, fine. Now when we ask question using only helping verb, then the replies are very simple. Do you like reading? Yes, no. Okay, then you say yes I do, no I don't. Do you like to make friends? Yes I do, no I don't. Do you drink milk every day? Yes I do, no I don't. सिंपल येस नो में भी दे दोगे तब भी रिप्लाई मिल गया. जनरली व्हाट हैपन्स, वी ट्राई टू गिव एक्सप्लेनेशंस फॉर दीज क्वेश्चंस ऑल्सो, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो. वेन एवर अ क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम यू यूजिंग एनी हेल्पिंग वर्ब, द रिप्लाइज शुड बी द सिंपलेस्ट वंस लाइक आई टोल्ड यू, येस और नो में, बिकॉज द person who is asking the question is not expecting more than that from you. Do you like summers? Yes I do, no I don't. Why to explain yes I like summers because in summers we wear light clothes and then it's not very cold outside. Why? He has not asked you all that. For that, give him another chance to ask you why. Okay, are you getting me? This is what you have to teach your students also. Whenever somebody asks you any question in any of the tenses where helping verb is there in the beginning, only helping verb is there in the beginning, then answers are only to yes I do और helping verb, do की जगह पे जो भी होगी, will, shall, is, am, are वगैरह कुछ भी, और no I don't. Yes I will, no I won't. Yes I am, no I am not. Okay, yes I have, no I don't. Clear? तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए पहली बात तो. Now do you have a pen? Yes I do, no I don't. Okay, do you trouble your parents? Yes I do, no I don't. Now if somebody is asking you the question using WH words, why do you trouble your parents, then you are supposed to answer. Okay, so such kind of questions, the tenses, we will try to bring as many as possible. Let's have some examples which I have with me. We'll simply translate these into English and then we'll try to add more for next vocabulary build up exercise. हम सपने क्यों देखते हैं? Why do we dream? स्ट्रक्चर फॉलो करना है. Why do we dream? Why do we dream? Fine. तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? Why don't you trust me? ठीक है, बात एक ऐसा शब्द है इंग्लिश में जिसका मीनिंग ढूंढने जाओगे नहीं मिलता. Why don't you trust me? अब जैसे मैंने आपको पहले बोला, अगर लिटरली जाना होगा तो फिर क्या बोलूँगा? Why do you not trust me? Why do you not trust me? बट क्योंकि स्पोकन में बोल रहे हैं, Why don't you trust me? Because you are a liar. वो तुमसे क्या कहता है? What does he say to you? Says नहीं आना. He है थर्ड पर्सन सिंगुलर. What does he say to you? He complains about you. आंसर भी साथ साथ होने चाहिए तुम लोगों के पास, कोई ना कोई. ये बच्चा हमेशा क्यों रोता है? Where? अच्छा, है. ये बच्चा हमेशा क्यों रोता है? Why does this child always cry? Cry. ठीक है, यही गड़बड़ होती है. एंड में फिर क्राइज लगा देते हैं बोलते टाइम. Why does he always cries? वो गलत हो जाता है. Why does he always cry? Because he misses his mother.
ओके, क्या तुम हमेशा सच बोलते हो? डू यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ? नो, समटाइम्स। तुम मेरी क्लास में हमेशा क्यों हंसते रहते हो? लिसन केयरफुली, ध्यान से सुन लेना, थोड़ा सा चेंज है। तुम मेरी क्लास में हमेशा क्यों हंसते रहते हो? आराम से, ओके ओके, वन बाय वन, बैठे बैठे बोल दो, कोई बात नहीं। नो, नॉट कंप्लीटली करेक्ट। अगेन नॉट कंप्लीटली करेक्ट। मैंने इसीलिए बोला ध्यान से सुन लेना। तुम मेरी क्लास में हमेशा क्यों हंसते रहते हो? कीप लाफिंग इन माई क्लास, दिस वॉज द ट्विस्ट। मैंने बोला भी था कोई काम करते रहते हैं तो कीप ऑन डूइंग। वाई डू यू ऑलवेज कीप लाफिंग इन माई क्लास? इसमें कीप जो है दैट इज द कैच। जो एस और यस लग रहा है ना, वो कीप के साथ लगना है। अगर यही थर्ड पर्सन होता, वो मेरी क्लास में हमेशा क्यों हंसता रहता है, तो फिर होता वाई डज ही ऑलवेज। अच्छा नहीं, तब भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? एस और यस क्यों नहीं लगता? बिकॉज डज लग चुका है। अगर एफर्मेटिव होता फिर कीप के साथ एस लगता। ही कीप्स लाफिंग, आई कीप लाफिंग। ओके, लाफ के साथ नहीं लगना, लाफ विल बी इन द कंटिन्यूस फॉर्म। सो वाई डू यू ऑलवेज कीप लाफिंग इन माई क्लास? बताओ भाई, कौन हंसता तुम लोगों में? चलो कोई बात नहीं, सीक्रेट भी रखने चाहिए थोड़े से। तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानते? स्पीकिंग के लिए वाई डोंट यू ओबे मी? वाई डोंट यू ओबे मी? फाइन। तुम कब सोते हो? When do you sleep? ओके। तुम ये फर्नीचर क्यों खराब करते हो? Why do you spoil this furniture? ठीक है। तुम स्विच ऑफ क्यों नहीं करते? Why don't you switch off? मैंने किस चीज़ का है वो नहीं बोला आगे। स्विच ऑफ मैंने इंग्लिश में ही बोल दिया था ऑलरेडी, वो वर्ब भी थी। वाई डोंट यू स्विच ऑफ? ओके, अगर मैं ये बोलता तो पंखा बंद क्यों नहीं करते, फिर बोलते वाई डोंट यू स्विच ऑफ द फैन। ठीक है, तब भी स्विच ऑफ लगता, बट क्योंकि पंखा बोला इसलिए वो साथ में लगता। उसे कब गुस्सा आता है? थोड़ा चेंज, बिकम एंग्री और गेट एंग्री। व्हेन डज ही गेट एंग्री? उसे मैंने बोला, अब ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब लगनी थी। व्हेन डज ही गेट एंग्री, ये चीज़ मिस नहीं किया करो। WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब इज अ मस्ट। ये पंखा धीरे क्यों चलता है? Why does this fan move? ओके, रिवॉल्व अगर घूमना बोलेंगे, चलता है तो सीधा हम लोग सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं वाई डज दिस वैन वर्क स्लोली? वाई डज दिस फैन वर्क स्लोली? पंखे का काम है चलना, तो हम सिंपल वर्ड्स में वाई डज इट वर्क स्लोली? ठीक है, वाई इज़ इट सो स्लो? अगर प्रेजेंट के हिसाब से नहीं जाना, इस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट के हिसाब से नहीं जाना, वाई दिस फैन सो स्लो, तो हम उस तरह से भी बोल सकते हैं इसको। ओके, तुम उससे दोस्ती कब करोगे? अच्छा सॉरी, करोगे आ गया, फ्यूचर आ गया। तुम उससे दोस्ती क्यों नहीं करते? अच्छा आराम से, एक ओके, नहीं थोड़ा और बेटर। हाँ हाँ,
हाँ ये एक तो है फ्रेंडशिप, देखो कितना घुसा हुआ है माइंड में। तो फ्रेंड्स पे भी आ जाओ, वाई डोंट यू मेक हिम फ्रेंड, वाई डोंट यू मेक हिम योर फ्रेंड, वाई डोंट यू मेक हिम अ फ्रेंड, कुछ भी। चलो कोई बात नहीं, होता है सबके साथ। इसे कोई पसंद क्यों नहीं करता? इसे कोई, कई लड़के होते हैं ना क्लास में, बच्चे, स्ट्रक्चर नहीं फॉलो कर रही है ना। वेट, मैंने बोला इसे कोई पसंद क्यों नहीं करता? अच्छा, इसको आराम से करते हैं। मैं लेट मी राइट, तब आप लोगों को शायद थोड़ा बेटर समझ आ जाए। इसे, अब उसे या इसे कुछ भी हो सकता है, मैं इससे बात कर रहा हूँ। इसे कोई पसंद क्यों नहीं करता? वाई बिगिनिंग में हम अग्री कर रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि यहाँ पे क्यों लगा है, क्यों का मतलब सीधा सा वाई। अब वाई के बाद क्या आना था? हेल्पिंग वर्ब, ओके। क्योंकि यहाँ पे इसे और कोई दोनों ही थर्ड पर्सन हैं और दोनों ही सिंगुलर हैं, ठीक है। हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि सिंगुलर में। वाई डज, अगर मैं इसके हिसाब से चलूँगा तो डज और फिर सब्जेक्ट फिर नॉट आएगा। अगर मेरे को सीधा ही चल रहा है स्पोकन के हिसाब से तो वाई डजंट, ओके। अब अगर मुझे लिखना है नोबडी, अब नहीं लगेगा क्योंकि मैंने नॉट लगा दिया पहले, तो नोबडी नहीं लगेगा, अब एनीबडी लगेगा। वाई डजंट एनीवन या एनीबडी लाइक हर या हिम। हर बार हिम क्यों लगाए हम? इक्वालिटी होनी चाहिए, जेंडर बाइस। वाई डजंट एनीवन लाइक हर, या वाई डज नो वन, नो वन या एनीबडी एक ही चीज़ होती, मीनिंग सेम है। जो हम सिखा रहे हैं उसके हिसाब से ये ज़्यादा करेक्ट है, बिकॉज डज नॉट और फिर वो सब्जेक्ट आ रहा है, ओके। तो दोनों ही तरीके से सेम है, बिकॉज ही टॉक्स अ लॉट। कुछ और भी हो सकता है। तुम घर कब जाते हो? When do you go home? हाँ, जब स्पोकन इंग्लिश क्लास ख़त्म हो जाती है ना। As soon as possible, as soon as it gets over. इस पर सभी हंसते क्यों हैं, या सभी इस पर क्यों हंसते हैं? सभी इस पर क्यों हंसते हैं? वन बाय वन, नहीं तो मुझे भी वो शुरू करना पड़ना, व्हील ऑफ नेम्स। सभी इस पर क्यों हंसते हैं, या इस पर सभी क्यों हंसते हैं, या इस लड़के पर सभी क्यों हंसते हैं, इस लड़की पर सभी क्यों हंसते हैं, की बात है। हाँ, यस, मैंने सभी बोला। हाँ, आ जाएगा। वाई डू ऑल लाफ एट हिम या हर, ठीक है। लाफ के साथ जनरली एट यूज की जाती है प्रपोजिशन। और वाई डू क्यों लगा? बिकॉज सबकी बात कर रही थी, ज़्यादा है, प्लूरल है। सो वाई डू ऑल। अगर एवरीवन लगाना होता फिर डज लगना था। हर कोई, ऑल में, सभी में, और हर कोई में फ़र्क है। हर कोई के लिए एवरीवन लगेगा, फिर तब हम बोलते वाई डज एवरीवन लाफ ऑन हर, फ़र्क आ जाता, चेंज हो जाता। तुम उसको बैठने के लिए जगह क्यों नहीं दे रहे? देते, टेंस चेंज हो जाता है। तुम उसको बैठने के लिए जगह क्यों नहीं देते? हाँ, सोचो। और अच्छा, हाँ, वाई डोंट यू, हाँ, गिव हिम स्पेस टू सिट। अच्छा, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, वाई डोंट यू गिव हिम स्पेस टू सिट, और हम सिंपल भी बोल सकते हैं वाई डोंट यू लेट हिम सिट।
तरीका सिर्फ डिफरेंट है, बात वही है कि तुम उसे बैठने क्यों नहीं देते, मतलब बैठने की जगह, ऑब्वियसली जगह मिलेगी तो ही बैठेगा। सो दोनों तरीके से हम लोग बोल सकते हैं इसको। वाई डोंट यू लेट हिम सिट, ठीक है, तुम उसे अपने पास बैठने की जगह क्यों नहीं देते, अपने पास बैठने क्यों नहीं देते, वाई डोंट यू सिट लेट हिम सिट नियर यू। ओके, तुम दूसरों पर भरोसा कब करते हो, When do you trust others? Okay. तुम दूसरों पर भरोसा क्यों नहीं करते हो, Why don't you trust others? Because everyone is not trustworthy. क्या तुम रात को अकेले घर से बाहर निकलते हो? Do you go out, do you move out of your house alone at night? Yeah, okay. Do you go out of your house alone at night? और अगर मैं बोलूँ क्यों जाते हो, तो तुम अपने घर से बाहर रात को अकेले क्यों जाते हो? Why do you go? सिंपल सी बात है, वाई लग जाना था, बाकी सारा सेम ही है। ओके, ये तेज तेज क्यों नहीं लिखती? Why doesn't she write fast? Why doesn't she write fast? तुम्हारा पेट कब भरता है? When does your tummy get full? When do you get full? हम सीधा भी डायरेक्टली क्या बोले, when do you get full? Okay, when does your tummy get filled? फिर भरता है तो फिर filled लगाएंगे टमी के साथ। ओके, ये कौन कौन कर सकता है? ठंडे दिमाग से सोच लो, ये कौन कौन कर सकता है? तो मैं सीधा कौन नहीं पूछ रहा था, ये कौन कर सकता है, मैंने 2 बार कौन क्यों लगाया? ये कौन कौन कर सकता है? Who all can do this? ठीक है, तुम ये कैसे कर सकते हो? How can you do this? अब सकते हो 2 बार मैंने 2 सेंटेंसेस में यूज़ कर लिया, तो कैन का यूज़ हो गया वहाँ पे। ठीक है, मैं भी करना चाहता हूँ, मैं ये, अच्छा मैं अपने आप से क्या क्वेश्चन पूछूँ पहले? मैं ये क्यों नहीं करना चाहता? हाँ, वाई डोंट आई वॉन्ट टू डू दिस। ठीक है, वॉन्ट आ गया यहाँ पे, करना चाहता। तुम ये कब करना चाहते हो? When do you want to do this? ठीक है, अर्ली मॉर्निंग। चलो फाइन, आई होप you have got hang of the interrogative tenses, how to make the interrogative tenses and how to answer the interrogative tenses. Keep in mind, whenever the question begins with helping verb, बहुत प्यार से politely yes or no में आंसर कर दो, बस बहुत है। उसके बाद मौका दो सामने वाले को, कुछ और पूछे वो WH वर्ड्स लगा के। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना। चलो, थैंक यू।